Yes, so yesterday we started with the chapter and it was completed also. Now, अब मुझे जल्दी से ब्रीफ में who will tell me, ब्रीफ में you are to tell me कि हमने उस चैप्टर में क्या पढ़ा था. Who will tell me? Who will tell me कि what was there in the chapter? Quickly, quickly, quickly. Very good, very good. I can see hands. Very nice, very nice. So let's start. The first person to tell me is Navdeep Kaur. Yes, Navdeep Kaur. Yes, bete, start. Navdeep Kaur, fifth red. Good morning, ma'am. Navdeep Kaur, Good morning, fifth ma'am. red. हाँ जी, नवदीप बोलिए बेटे. Yes, ma'am. यस बेटे, स्टार्ट. आप बताइए मुझे, हमने जो कल चैप्टर पढ़ा था, हमें पढ़ा था कि महाराजा बेटे देयर इज सम नेटवर्क इशू. उसमें पढ़ा था कि ट्रावनकोर में एक महाराजा ने ऑर्डर. बेटे आपकी आवाज क्लियर नहीं बेटा. यू म्यूट योरसेल्फ. नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम. महाराजा ने. ओके ओके, नेक्स्ट इट इज ओके. यजत, यू स्टार्ट. यस. Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग. क्विकली बेटा टेल मी. Ma'am, we read in that chapter that waste can be quite useful. Okay, so what is the title of the chapter? Ma'am, wonderful waste. Yes. So what did we read in that? Can you narrate that story in brief? Yes, ma'am. Okay, start it. The Maharaja of Travancore organized a feast in his palace. Many guests Not came. palace, not palace. It is palace. Palace. Yes. Okay. In his palace, many people and pandit came there. Yes, yes, yes. Okay, okay, okay. You stop. Okay, you stop. Yes. Now you are to anybody else is to continue. इसके आगे का continue करना है. You are to narrate that story. अब जिसने कल miss की थी, so that that student is able to understand in brief. ठीक है? तो who will tell me next? It is yes, Japneet. Japneet का fifth red. Yes, बेटे. Good morning, ma'am. Ma'am, after this, the Maharaja said that there were so many cooks as there was a feast. Then there were cooks that were cooking the food, and there was one cook who was taking a big basket of vegetable scraps. And then Maharaja said that where are you taking these vegetable scraps? And then the cook said that Maharaja, this is the waste. And the Maharaja said that you should use this. So he just ordered him to use that vegetable Okay, scrap. stop. Good. Very good, very good. So the Maharaja ordered his cook to use those vegetable scraps. Okay, so next, who will tell me? Next, others. Why not everybody? I want everybody to give answer. You all should raise your hands. बेटा गलत होगा कोई बात नहीं. गलत होगा कोई भी बात नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है. But you are to give me answer. अब मुझे पता तो चले आपने कल सुना भी था या नहीं. Yes, जयंत मक्कड़. हाँ जी बेटे बोलिए. Quickly, जयंत मक्कड़, you have raised your hand. बोलिए बेटे आगे. जयंत मक्कड़. बेटा that you are to see. यही तो मैंने चेक करना है. जो बच्चा बोल रहा है बाकी सुन रहे हैं या नहीं, वो मैं थोड़ी बताऊंगी बेटे. You have to be attentive. Find a way to use them. The Maharaja. बेटे you are not to. Jayant, बेटा you are not to read from book. मैंने बोला है आपने मुझे ब्रीफ में बताना है कि चैप्टर में क्या पढ़ा था हमने.
अब जहां पे उसने जपनीत ने स्टॉप किया आपने वहां से कंटिन्यू करना है. Maharaja ordered the cook to use the vegetable scraps. So after that, what happened? What did the cook do then? Okay, okay, you mute yourself. Okay, you mute yourself. Okay, this is Akshita Sharma. Who is this Akshita Sharma? हाँ जी बेटे बोलिए. Yes बेटे, you have raised your hand. हाँ जी, quickly tell me. उसके बाद क्या हुआ? What did the cook do then? बोलिए. Good morning. बेटे जल्दी से बोलिए. Good morning. बोलिए बेटे. Ma'am, then Then an flashed idea okay. in his mind. Whose mind? In whose mind? In whose In mind? He's in gone. cook's mind. In cook's mind. Very good, very good. So what did he do with those vegetable scraps? He cut the bits in long strips Okay, very and good. Okay. Next, beta. And mixed coconut, green chilies, garlic, in that big pot, where did he keep that big pot? Where did he place that big pot? Tell me. Yes, Angel will tell me. Then the cook put the huge pot on the place, put the huge pot and placed it on the fire. Very good. Next he ground some fresh coconut, green chilies and garlic powder. You are not to look at बेटे you are not to look at your book. बुक से देख के नहीं बोलना. मैंने रीडिंग करने के लिए थोड़ी बोला बेटा. हाँ जी बोलिए चलो आगे. Curd. He also decorated with curry leaves. He also decorated बेटा. यहाँ पे okay Angel mute yourself. Good try. Very good बेटे. अब यहाँ पे बेटे आपने ये चीज ध्यान रखनी, जो भी आप बता रहे हो ना, you are to tell in past tense and for that you will use second form of verb. ये चीजें बहुत ध्यान देनी है आपने, इसीलिए मैं आपको पूछ रही हूँ, यही बताने के लिए कि आपको ये गलती नहीं करनी. जब भी कोई इंसिडेंट आप पास्ट का बता रहे हो तो आपने सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है. ओके, सो ही डेकोरेटेड दैट डिश विद करी लीव्स. Acha, now I am going to ask someone. I am not going to tell you to raise your hands. I can ask anybody. It is Subhanshu Gulati. Subhanshu Gulati, I think. Then Yes, the cook mixed the curd in the pot. in the pot, not pot, pot. Yes. The pot and salt and mixed them. Okay. Then he decorated with curry leaves. फिर वही गलती. Then and decorated बेटा, decorated आपने सुनना है ध्यान से. Decorated with curry leaves. Okay. Then the guests asked the name of okay. dish. Then the cook thought. Then Not the thought. name. बेटा आप pronunciation is wrong. Thought नहीं होता, it is thought. Okay. Then The cook thought for a while and okay mute yourself. Okay. Okay, no, it is Bhumika. Bhumika will tell me what was the name of the dish. Bhumika. The name of the dish is avial. It is. Okay, Bhumika. We have two Bhumika. One is Bhumika Sachdeva and the other one is only Bhumika. Okay. So name of the dish is, everybody will speak with me. You will not unmute yourself. The name of the dish is avial. It is avial. Okay. Right बेटे. अब इसके बाद बच्चे मैंने आपको बोला था वो बैक एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करने के लिए. हेवन बेटे आप अपना कैमरा सीधा कीजिए. हेवन सिट प्रॉपर्ली बेटे. Don't change that layout of your camera. हाँ जी बेटे जल्दी से अपनी बुक्स खोलिए. We are going to discuss that back exercise. Quickly open your books.
Yes, the first question is ingredients are the things that are used to make a dish. Circle the ingredients of avial in the box. Okay, अब बताइए इसमें से कौन कौन सी चीजें हैं which are used to make avial. निधिमा बताइए जल्दी से, निधिमा क्विकली, निधिमा बेटे बताइए. chilies, Okay, coconut, right. garlic, Okay, vegetable scraps, good. curd, Yes. pot, Okay. curry leaves. पॉट इंग्रेडिएंट्स में नहीं आएगा. इंग्रेडिएंट्स में हम पॉट का वो तो है कि वो सब्जी बना, वो अवियल बनाने के लिए कौन कौन सी चीजें यूज की गई उसको बनाने के लिए. ठीक है, तो उसमें हम पॉट नहीं बेटा यूज करेंगे, करी लीव्स. ठीक है, राइट. सबका ठीक था ये? वॉज दिस आंसर राइट? ओके, ओ वेरी गुड. अच्छे बच्चे, सबका आंसर ठीक है. जसजोत जी आपका आंसर ठीक है बेटा? ये जसजोत सिंह, Ma'am, आपका- yes. Ma'am, बेटा, yes. आपने यस नो नहीं बोला, सिंपली यू आर टू शो मी दिस. ओके, वेरी गुड. हाँ जी, नेक्स्ट थिंग इज ट्रू फॉल्स. स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स. द किंग हैड ऑर्डर्ड अ डिनर इन द पैलेस. हाँ जी, द किंग हैड ऑर्डर्ड अ डिनर इन द पैलेस. ओके, जसनूर सिंह, जसनूर सिंह, जसनूर सिंह Good जल्दी से. morning, ma'am. Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग बेटे, आंसर बताइए. Ma'am, true. हाँ जी, it is true. Yes. Second, no one had heard of or tasted avial before. इसका मतलब क्या? पहले इस लाइन का मतलब बताओ क्या है. First you tell me the meaning of this sentence in Hindi. भाविका गाबा, भाविका गाबा, हाँ जी बताइए. इसका पहले मुझे मीनिंग बताइए हिंदी में, क्या मतलब है इस सेंटेंस का? Ma'am, please repeat the sentence. बेटा हम बैक एक्सरसाइज कर रहे हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट सेकंड ट्रू फॉल्स. मैम, इसके बारे में किसी ने सुना भी नहीं था और टेस्ट भी हाँ, किया था. कि किसी ने भी पहले अवियल के बारे में ना सुना था, ना किसी ने उसको टेस्ट किया था. तो ये हमारा आंसर राइट है या रॉन्ग है? इट इज राइट, इट इज ट्रू. और बेटे जब आपको इंस्ट्रक्शन में ट्रू और फॉल्स लिखा है तो आपने पूरा वर्ड ट्रू या फॉल्स लिखना है. आपने टी या एफ नहीं लिखना. ओके, टी या एफ नहीं लिखना, इसको आपने ट्रू या फॉल्स पूरा वर्ड लिखना है. ओके, नेक्स्ट, द कुक हैड प्लान टू मेक अनदर डिश यूजिंग द वेजिटेबल स्क्रैप्स. हाँ जी, यस हर्षिका, हर्षिका. मैम ट्रू. नो, इट इज नॉट ट्रू. ये प्लान उसने थोड़ी किया था, वो तो उसको बोला गया था, उसके बाद उसने किया था ना. उसका क्या था, उसने तो फेंक ही देना था. कुक ने तो वो फेंक देने थे ना वो सारे वेजिटेबल स्क्रैप्स. तो यहाँ पे बेटे फॉल्स आएगा. कुक ने नहीं ये प्लान किया था, ये तो राजा के कहने के बाद कुक ने ये काम किया था. ओके, सो इट्स आंसर इज फॉल्स. राइट. हाँ जी, नेक्स्ट. अब यहाँ पे आपने रेसिपी, रेसिपी का मतलब सबको पता है ना, कि किसी चीज को बनाने का तरीका, क्या क्या स्टेप्स हम फॉलो करते हैं. तो ये अवियल बनाने के लिए they have written some points. You are to write these points in proper order. उसके सामने आपने 1 2 3 4 प्रॉपर ऑर्डर बताना. ओके, हाँ जी, तो ये कौन बताएगा? ये जसजोत, जसजोत बताएगा. ये जसजोत बताइए बेटे. Ma'am, please repeat. बेटा why don't you listen carefully बेटा? आपका मैम ध्यान आपकी कहीं और आवाज था. मैम थोड़ी No, this अब कैसे मेरी आवाज आ गई? ये एक्सक्यूज है, आपका ध्यान कहीं और था बच्चे. So please be attentive. Okay, mute yourself now. Mute yourself now. हाँ जी, it is मुझे कौन बताएगा अब? भाविक चड्डा, भाविक चड्डा will tell me. गुड मॉर्निंग मैम. बोलिए बोलिए बेटा जल्दी से. फर्स्ट पे कौन सा आएगा? फर्स्ट तो they have written. हाँ जी, बोलिए वो सेंटेंस क्या है? Wash and clean the mix of vegetable of vegetable bites. बाइट्स नहीं है, बिट्स है बेटा. Ma'am, बिट्स, बिट्स का मीनिंग मैंने क्या बताया था?
कल मैंने बिट्स का मीनिंग भी बताया था. आई टोल्ड यू टू राइट इट डाउन. हाँ, स्मॉल पीसेस. वेरी गुड. इट इज स्मॉल पीसेस. वेरी गुड, वेरी गुड. ठीक है. उसके बाद सेकंड क्या आएगा? भाविक बताइए सेकंड. Cut the vegetable scraps into long strips. ये भी अगेन गलती बेटा. स्ट्राइप्स की कल मैंने डिफरेंस बताया था ना आपको. स्ट्राइप्स और स्ट्रिप्स में, स्ट्रिप्स मतलब पतले पतले जो लंबे लंबे जो छिलके वो है. ठीक है, लंबे लंबे पतले पतले पीसेस जो हैं दैट इज स्ट्रिप्स. स्ट्राइप्स होती हैं जो धारियां होती हैं. जैसे कल मैंने एग्जांपल दिया था जीब्रा का, उसकी बॉडी के ऊपर ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्राइप्स होती हैं. ओके, सो इट इज स्ट्रिप्स. ओके, म्यूट योरसेल्फ. नेक्स्ट इट इज स्पर्श. स्पर्श बोलिए. नेक्स्ट जल्दी जल्दी स्पर्श, जल्दी से. Good afternoon, ma'am. Grind some coconut, green chilies, and garlic. बेटा ऐसे कोकोनट ऐसे नहीं बोलते. इट इज कोकोनट. ओके, सो ग्राइंड सम कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक. गुड, वेरी गुड. म्यूट योरसेल्फ. फोर्थ पॉइंट. कुंजल. कुंजल. Ma'am, fourth is wipe some curd and mix it in. बेटा प्रोनाउंसिएशन पे आप लोग ध्यान दीजिए. इट इज विप, नॉट वाइप. वाइप तो होता है हम वाइप करते फेस को, जो पोंछते हैं ना, दैट इज वाइप. इट इज विप. विप का मीनिंग मैंने कल क्या बताया था? कल मैंने विप का मीनिंग भी बताया था. आई गेव यू एन एग्जांपल आल्सो फॉर दैट. विप का मीनिंग. वेरी गुड, वेरी गुड. हाँ जी, विप का मीनिंग कौन बताएगा मुझे? ये बताएगा कौन? हेवन. हेवन बताएगा. विप का मीनिंग क्या बेटा मैंने लिखवाया था? बोलिए हेवन. विप का मीनिंग बेटे. का मीनिंग डालना. नो, दैट इज पोर. वो तो पोर का मीनिंग था, डालना. विप का मीनिंग आई गेव यू एन एग्जांपल आल्सो. विप का मीनिंग. हाँ जी, यस. ये मुझे बताएगा तनिष्का ढंड. हाँ जी, तनिष्का ढंड बताइए बेटा. मैम. हाँ जी बेटे, Good morning, बताइए. ma'am. गुड मॉर्निंग बेटे. To beat. टू बीट. फेंटना. वो मैंने बताया था, हम एग को भी बीट करते हैं ना, दही को भी जब मम्मी ने रायता बनाना होता है वो बीट करते हैं ना, दैट इज विप. ओके, उसके बाद फिफ्थ पॉइंट. फिफ्थ पॉइंट जपजीत कौर. फिफ्थ रेड जपजीत कौर, जल्दी से. Pour some coconut oil on the top. यस, pour some coconut oil on top. And sixth यजत, sixth point. Ma'am, decorate with curry leaves. Decorate with curry leaves. कड़ी नहीं, curry leaves. ये कड़ी वो पंजाबी कड़ी नहीं है. These are curry leaves. Okay? Yes. हाँ जी बेटे. अब मुझे and seventh is Avial is ready. हितेशी एक बार सारा ऑर्डर बोल दो बेटा, so that students can check it. हितेशी जल्दी से ये ऑर्डर बोल दो. हाँ जी. Numbers, only numbers. One. Wash and clean the mix of vegetables. I told you to tell me only the serial order of numbers. जो numbers आपने लिखे हैं ना वो बता दो क्या है. Okay, ma'am. 3, बताइए. 2, 1, 6, 4, 5, 7. ठीक है, सबका ठीक है. सबका ठीक है. ओह वेरी गुड. हाँ जी, शाबाश. वेरी गुड, वेरी गुड. चलो, अब उसके बाद आपको एक और एक्सरसाइज दी थी. ये इट डिपेंड्स. आप क्या क्या कब क्या करते हो, ये चीजें वेरी करेंगी. ठीक है ना. यहाँ पे एक रूटीन सी बताई हुई है ना कि फर्स्ट आप घर जब जाते हो क्या करते हो. सो दैट डिपेंड्स ऑन यू. ओके, अब यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली है कि बेटा यहाँ पे देखो, इन्होंने जब लिखा है ना फर्स्ट आए, उसके बाद लिखा है, उसके बाद उन्होंने कि उसके बाद में क्या करता हूँ देन, फिर उसके बाद में नेक्स्ट. अब यहाँ पे समझने वाली चीज ये है कि जब आप कोई पैराग्राफ वगैरह लिखते हो ना, तो आप क्या करते हो, देन आई वेंट देयर, देन आई मेट माई फ्रेंड, देन आई टोल्ड हिम. आप ऐसे करते हो ना. मतलब ये है कि जब हम एक के बाद दूसरा कोई चीज बताते हैं ना, तो हम सिर्फ देन 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 नहीं यूज करते. ये देखो वेराइटी ऑफ वर्ड्स इन्होंने यहाँ पे यूज किए हैं, तो इस चीज को ध्यान से समझ के करना है. ओके, इज इट राइट? अच्छा, क्विकली इसका आंसर मुझे कौन बताएगा, पूरे का इसका. संचिता जल्दी से बोलिए बेटा.
हाँ जी, जल्दी से Put बोलिए। away. First, I put away school bag. Then I change out of school uniform. Next, I have lunch. After that, I do the homework. Finally, I go to play. यस, ठीक है। अब देखा, समझ आया ना? नहीं तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, आप लोग क्या करते हैं, कॉम्पोजिशन जब लिखते हैं देन आई डू दिस, देन आई डू, देन की जगह देखो कितने वेराइटी ऑफ वर्ड्स उन्होंने यूज किए। गॉट इट? इज इट ओके? समझ आ गया सबको? ओके, नाउ बेटे टर्न द पेज, नाउ टर्न द पेज। अब जल्दी से ना यहाँ पे एक ओके मैंने उस ये जो एक्सरसाइज है एक दी हुई, इट इज पेज नंबर 14 पे। पेज नंबर 14 पे देखो एक एक्सरसाइज दी हुई है नीचे, वर्ड बिल्डिंग वाली। इट इज पेयर वर्क दिया हुआ, इट इज सम वर्ड्स हैव मोर देन वन मीनिंग। अब जैसे मैंने आपको ग्राउंड वर्ड बताया था, ग्राउंड वर्ड के मोर देन वन मीनिंग है? कैन एनीबॉडी टेल मी? ग्राउंड का मीनिंग क्या होता है? एक तो हमको पता है, आप जो वो ग्राउंड ओपन, देयर इज एन ओपन ग्राउंड नियर माय होम, है ना? तो वो ग्राउंड हो गया, वो जो एक मैदान है। बट एक और वर्ड होता है ग्राउंड का, एक और मीनिंग मैंने बताया था। फलिका विल टेल मी, फलिका बताइए। हाँ जी फलिका। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटे, बताइए इसका क्या मतलब है ग्राउंड का, एक और मीनिंग? मैम ग्राउंड का मतलब जैसे हम ग्राइंड करना। हाँ जी, तो ये ग्राइंड की, यस इट इज सेकेंड फॉर्म ऑफ ग्राइंड। ऐसे ही आपको उन्होंने यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं। फर्स्ट वर्ड दे हैव गिवन, इट इज ग्राउंड। अब आपने yesterday also I told you कि now you start taking help of dictionary। अब आपने बेटे क्या करना है कि ये ग्राउंड वर्ड के दोनों मीनिंग्स चेक करने हैं डिक्शनरी में से। अब आपने डिक्शनरी देखनी है, ये चीज मैं नहीं करवाऊंगी, आपने अपने आप करनी है। डिक्शनरी में से आप देखो, ग्राउंड का एक मीनिंग तो मैंने बता दिया ना, ओपन स्पेस जो होती है, और दूसरा मीनिंग है दैट इज सेकेंड फॉर्म ऑफ ग्राइंड। ओके, ऐसे ही सर्वे, ये सारे वर्ड्स का आपने चेक करना है जब आप डिक्शनरी खोलते हो ना, जब आप डिक्शनरी खोलते हो ना। जसनूर सिंह बेटे म्यूट योरसेल्फ, जसनूर सिंह बेटा म्यूट योरसेल्फ। जब आप बेटे डिक्शनरी खोलते हो ना तो एक वर्ड के कितने सारे मीनिंग्स दिखते हैं आपको, तो आपने ये काम अपने आप करना है। विल यू बी एबल टू डू? विल यू बी एबल टू डू? बेटा कुछ इंटरेस्टिंग करने के लिए मिल रहा है ना, वो तो हम लिख ही लेते, मैम ने लिखा हमने कॉपी कर लिया। ओके, विल यू बी एबल टू डू? ओके ओके, गुरसिमर प्लीज डोंट टाइप इन चैट बॉक्स। ओके राइट बेटे, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हैव अ लुक। सेकेंड क्वेश्चन जो है बेटा, मेक न्यू वर्ड्स बाय एडिंग और ड्रॉपिंग a few letters from the root word. Some are done for you. अब यहाँ पे देख के आपको देखो समझ आएगा। उन्होंने बोला है कि कहीं पे आपने कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिन पे ईडी लग जाता है पीछे, कुछ वर्ड्स पे नहीं लगता। ओके, अब जैसे ग्राइंड है, ग्राइंडेड थोड़ी होता है। ग्राइंडेड अगर ग्राइंड के बाद ईडी लगा दोगी तो वो वर्ड बनेगा? नो। बट आईएनजी लगाऊंगी तो वो वर्ड बनेगा ना, ग्राइंडिंग। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए, जैसे उन्होंने ये फर्स्ट वर्ड दिया है पाउंड, तो पाउंड का पाउंडेड। स्पर्श बेटे टाइम देखो, अभी भी यू आर फीलिंग स्लीपी बेटे, बी अटेंटिव। ओके, तो पाउंड का पाउंडेड एंड पाउंडिंग। अब पाउंडर पाउंडेस्ट नहीं होता ये वर्ड। ऐसे ही उन्होंने कुछ और वर्ड्स दिए हुए हैं। ट्राई का क्या बन जाएगा? ट्राइड, पता है ना आपको? TRIED, ईडी ऐड कर सकते हैं ना ट्राई के बाद, हम कर सकते हैं, तो वो ट्राइड बन गया। ट्राइंग भी होता है, आई एम ट्राइंग वेरी हार्ड टू गेट गुड मार्क्स, तो TRYING भी होता है। तो ट्रायर ट्राइएस्ट होता है? ट्रायर ट्राइएस्ट होता है ये कोई वर्ड? नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ट्राई जो है वो वर्ब है, और ट्रायर ट्राइएस्ट तो वो होगा जो एडजेक्टिव होगा। ये पता है ना आपको? ये पता है ना? तो ये भी बेटे आपने अपने आप करना है, ये आपने अपने आप करता है। ओके, अच्छा अब मैंने आपको क्या दिया था? डिक्टेशन वर्ड्स। डिक्टेशन वर्ड्स लिख लिए सबने? सबने लिख लिए डिक्टेशन वर्ड्स?
वेरी गुड. अच्छा, डिक्टेशन वर्ड्स आपने लिख तो लिए, तो आपको मीनिंग समझ आ गए सारे वर्ड्स के? सारे वर्ड्स के मीनिंग समझ आ गए? कुछ नया वर्ड कोई लगा आपको? डिड यू ट्राई टू चेक द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड इन डिक्शनरी? चेक किया चेक? सबने नहीं किया बेटा, इसीलिए अब आप बड़े हो गए हो, तो मैंने इसीलिए आपको बोला मेक इट योर हैबिट. जब भी कोई नया वर्ड देखते हो ना, तो ट्राई टू सी द मीनिंग्स इन डिक्शनरी. राइट? ओके, चलो मैं अभी आपको बता देती हूँ. ट्रेडिशनल, फर्स्ट वर्ड इज ट्रेडिशनल. ट्रेडिशनल का मतलब क्या होता है? समथिंग दैट इज रिलेटेड टू आवर ट्रेडिशन, जो हमारी परंपरा से जुड़ा होता है, जो सदियों से करते ही आ रहे हैं, दैट इज समथिंग ट्रेडिशनल. सेकेंड वर्ड है इमेजिन. इमेजिन का मतलब किसी चीज के बारे में सोचना, कुछ टू थिंक अबाउट समथिंग, दैट इज इमेजिन. थर्ड वर्ड है स्टर्न. स्टर्न का मतलब कौन बताएगा मुझे? ये वर्ड चैप्टर में भी यूज हुआ, मैंने मीनिंग भी बताया था. वो स्टर्न ली था, तो ये स्टर्न है. बताइए, मैंने मीनिंग बताया था, बुक में से देख के बताओ अगर आपने मीनिंग लिखा था तो. चेक इट एंड देन टेल मी. स्टर्न ली का मीनिंग मैंने बताया था ना. द महाराजा कमांडेड स्टर्नली, आया था ना ये सेंटेंस? यस, हाँ जी बताइए स्टर्न का मीनिंग. ओ वेरी गुड. मिसबा स्टर्न का मीनिंग? हाँ, सीरियस. यस, सीरियस या स्ट्रिक्ट. वेरी गुड, वेरी गुड. ओके, नेक्स्ट वर्ड इज सर्वे. सर्वे का मीनिंग भी मैंने बताया था. सर्वे का मीनिंग मैंने बताया था, बुक में बताइए, मैंने आपको लिखवाया था सर्वे का मीनिंग. ओके ओके, बताइए बताइए. हाँ जी, मौलिक बताइए आप. मौलिक. मैम मौलिक चेकिंग. हाँ, मैम चेकिंग. नॉट चेकिंग, टू चेक और टू एग्जामिन. ओके, To किसी चीज को check. चेक, हाँ, टू चेक. यस, ओके, म्यूट योरसेल्फ. टेम्पटिंग. टेम्पटिंग मीनिंग बताया था. टेम्पटिंग, मुझे ये चेक करना है कि किस किस को मीनिंग पता है. टेम्पटिंग, हाँ जी, वेरी गुड. गुरलीन कौर. गुरलीन कौर, हाँ जी बेटे बोलिए. Yes मैम. गुरलीन, ये बेटा टेम्पटिंग का मीनिंग बताइए. Tempting. मैंने बुक पे लिखवाया था, आपने नहीं नोट किया ना. मैम वेरी बैड. मैम मेरे कल नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम थी. म्यूट योरसेल्फ. ओके बेटा, अगर आपको कुछ मिस हो जाता ना, तो रिकॉर्डिंग हम शेयर करते हैं, वो देख लिया. हाँ जी बेटे. यस, अवनीत कौर. अवनीत कौर, हाँ जी अवनीत कौर बताइए. बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही. नो, आई एम नॉट एबल टू लिसन बच्चे. हाँ जी, यस माधव. माधव बताइए. टेम्पटिंग. मैम अट्रैक्टिव. यस, इट इज अट्रैक्टिव. वेरी गुड, वेरी गुड. एक्वेंट का मतलब पता है किसी को? एक्वेंट का मतलब किसी ने चेक किया? ओके, मैं बताती हूँ. एक्वेंट का मतलब होता है टू मेक समवन फेमिलियर विद समथिंग. मतलब किसी को किसी चीज के बारे में बताना. कोई चीज अननोन है, नहीं पता, उसके बारे में बताना, उसको हम बोलते हैं एक्वेंट. ओके, नेक्स्ट एडवांटेजियस. एडवांटेजियस का मतलब, एडवांटेज का मतलब क्या होता है? फायदा. एडवांटेजियस इज जो फायदेमंद होगा, तो उसका क्या मीनिंग होगा? वेरी गुड, वेरी गुड, आपको पता है. भूमिका सचदेवा. भूमिका सचदेवा. मैम फायदे. हाँ, मैम फायदे. वो तो मैंने बता ही दिया, फायदे नहीं, फायदेमंद. एडवांटेजेस फायदेमंद. इसका बेटा इंग्लिश में जो मीनिंग होगा दैट इज बेनिफिशियल. बेनिफिशियल. ओके, BENEFICIAL, बेनिफिशियल. नेक्स्ट एम्बेसडर. एम्बेसडर. एम्बेसडर का मीनिंग मैं बताती हूँ क्या होता है. एम्बेसडर का मीनिंग होता है बेटा जो दूसरी कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं ना. यस, यजत. यजत नोज इट्स मीनिंग. यस यजत, व्हाट इज इट मीनिंग ऑफ एम्बेसडर? Ma'am, meaning
मीनिंग ऑफ एम्बेसडर इज जो किसी कंपनी की जो एड्स होते हैं, उस किसी कंपनी की एड्स को जो लोग ज्यादातर करते हैं उसे उस कंपनी की एम्बेसडर कहा जाता है, उस कंपनी का एम्बेसडर। ओके, ठीक है, मींस रिप्रेजेंटेटिव्स, जो उस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आपने एम्बेसी वर्ड सुना होगा ना, एम्बेसी वर्ड सुना है ना, वो जो अब्रॉड जाने के लिए एम्बेसी में जाना पड़ता है ना पहले, तो वहां पे जो दूसरी कंट्री के, वो कंट्रीज के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं ना, उनको हम एम्बेसडर्स बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट, अनाउंस, किसी चीज को अनाउंस करना, इट्स मीनिंग इज टू डिक्लेयर, DECLARE। एंड अपॉइंटमेंट का मतलब अ फॉर्मल मीटिंग। हम कहीं जाना होता है, किसी डॉक्टर के पास जाना है, तो वी फिक्स अप एन अपॉइंटमेंट फॉर दैट, ऐसा करते हैं ना हम। सो अपॉइंटमेंट जो है दैट इज फॉर्मल मीटिंग। ओके बेटे, अब आज बेटे आपको मैंने ये डिक्टेशन वर्ड्स कराए हैं, साथ अब कल के लिए आपको सेंटेंसेस हम भेजेंगे। यू आर टू मेक सेंटेंसेस ऑफ सम वर्ड्स एंड लेट मी टेल यू, जो फर्स्ट है वर्ड वो है, अच्छा अब जल्दी से मुझे बताओ, कुक वर्ड एज नाउन, कुक वर्ड एज नाउन। हमने, आप बुक आपके सामने, यू कैन ओपन योर बुक ऑल्सो, यू कैन ओपन योर बुक ऑल्सो। हाँ जी, जल्दी से मुझे सेंटेंस बना के बताइए कुक का, बताइए कौन बताएगा? कुक का सेंटेंस आपके सामने बुक है, एज नाउन आपने बनाना है। यस, भाविक चड्ढा, जल्दी से बताइए। Ma'am, my mother cooks tasty food. माई मदर कुक्स टेस्टी फूड, तो ये यहाँ पे नाउन है बेटा। जो नाउन किसी भी सेंटेंस में होता है ना, वो व्हाट का आंसर देता है। अब यहाँ पे आपने बोल दिया माई मदर कुक्स व्हाट, व्हाट का आंसर तो फूड आ रहा है, तो यहाँ पे जो कुक्स है दैट इज यूज्ड एज वर्ब। माई मदर कुक्स टेस्टी फूड, तो यहाँ पे कुक खाना बनाना, दैट इज एक्शन, तो ये वर्ब है। कुक एज नाउन मैंने बोला है, कुक एज नाउन। हाँ जी, इट इज शिवांश नागपाल, जल्दी से कुक एज नाउन। Ma'am, a person who cooks food. A person who cooks food. बेटा अपने कुक वर्ड को सेंटेंस में बेटा बनाना है, उसका सेंटेंस कुक एज नाउन। सुना करो ध्यान से, कुक एज नाउन। ओके, म्यूट योरसेल्फ। गुरसिमर कौर, जल्दी से। हाँ जी बेटा, जल्दी से बोलिए। गुड मॉर्निंग बेटे, जल्दी से। Noun. I want to be a cook. I want to be a cook. Okay, this is used as noun, and my mother cooks food, that is used as verb. Okay, next is Jasnoor, beta mute yourself. Jasnoor, beta mute yourself. Okay, next is walk word as noun. Walk word as noun. जल्दी से बताइए, walk word as noun. Yes, जपनीत बताइए। He walks on the road. He walks on the road. ये यहाँ पे walk क्या है? It is used as verb here. No, बेटा मैंने as noun बोला है। He walks slowly. He walks along the road. That is used as verb. क्योंकि वो चलता है, एक्शन हो गया ना, वो तो verb हो गया। अब walk as noun, जल्दी से मुझे बताओ। हर्षिका, I will go to a walk at night. I daily go for a walk at night. अब यहाँ पे जल्दी से एक चीज ध्यान से सुन लो, मॉर्निंग वॉक वर्ड अगर लिखोगे तो वो गलत होगा, क्योंकि वो कंपाउंड वर्ड बन जाता है। ठीक है, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक नहीं लिखना। आई गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, इस वे में लिखना। ओके, इज इट क्लियर? ये सेंटेंस में गलती करनी है आपने, और ये मैंने बता दिया क्या गलती करनी। मॉर्निंग वॉक नहीं लिखना बेटा, वो कंपाउंड वर्ड बन जाता है। ओके, इज इट ओके? तो बेटा ये मीटिंग कभी भी ओवर हो सकती है। Excuse me, ma'am. यस बेटा, यस।